collecting oil samples only from approved locations, such as the bottom valve in OLTC drain point. Proper flushing, clean sampling runs, and air seal ensure contamination-free samples and accurate test results. Each oil sample is properly labeled and supported with complete documentation, ensuring traceability, compliance, and reporting. All sampling activities are performed with full PPE and strict safety precautions to protect personnel. At Origin Technical Services Private Limited, we provide transformer oil testing, calibration services across multiple industries, including solar power, windmills, pharmaceuticals, discoms, power plants, and many more. Our expert team ensures accurate oil sample collection and advanced testing, delivering reliable results across pan-India locations. Choose being the best Origin Technical Services Private Limited for safe, professional, and compliant transformer sampling. You don't know what you don't know, especially when it comes to transformer oil testing. That's why it's important to learn from the experts. Transformer oil sampling looks simple, but one mistake can cause serious injury, fire, or invalid test results. Sampling near an energized transformer exposes personnel to severe electric shock. And never touch live or unidentified components. Transformer oil can be hot and under pressure. Sudden valve opening may cause oil splashing, leading to burns and injuries. Sampling from unauthorized points, especially the top of the transformer, extremely dangerous. Unclean bottles or improper flushing contaminates oil samples, resulting in inaccurate transformer oil test reports. Transformer oil is highly flammable. Smoking, producing tools, or unsafe practices can trigger fire or explosion. Failure to wear proper PPE or follow IS 6855 procedures puts both safety and test liability at risk. Safe and correct transformer oil sampling ensures accurate results in long-term transformer health. At Origin Technical Services Private Limited, we provide transformer oil testing and calibration services across multiple industries, including solar power, windmills, pharmaceuticals, discoms, power plants, and many more. Our expert team ensures accurate oil sample collection and advanced testing, delivering reliable results across pan-India locations. Choose being the best Origin Technical Services Private Limited for safe, professional, and transformer oil sampling. हाय, आई एम गौरव कंबोज। आज हम ट्रांसफार्मर ऑयल टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ। वेलकम टू आवर वेबिनार। नाउ वी आर स्टार्ट द टेक्निकल वेबिनार। Welcome to our technical webinar on transformer oil testing. Transformer oil testing. Transformer oil is also known as insulating oil, type of having outstanding electric insulating properties that remain stable at high temperatures. Used in oil-filled electrical transformers to insulate, prevent arcing, corona discharge and act as a cool. सबसे पहले हम समझेंगे कि ट्रांसफार्मर ऑयल क्या है और यह ट्रांसफार्मर में क्या काम करता है। ट्रांसफार्मर का इंसुलेटिंग ऑयल भी कहा जाता है, इसलिए यह ट्रांसफार्मर को इंसुलेटिंग प्रोवाइड कराता है और यह ट्रांसफार्मर को कूलिंग भी प्रोवाइड कराता है। Why do transformers fail? Around 75% of distribution and power transformers fail every year. Every important oil testing parameter cannot be known. No transparency and accuracy in recording. Testing of oil and maintenance are based on the real-time condition of the transformer. The right data may not be available to the right. अब हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर फेल क्यों होता है।
इंडिया के अंदर हर साल लगभग 75 जो पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हैं वो फेल होते हैं। जैसे कि हमारा जो सबस्टेशन है या फिर ऑपरेशन है, तो वो आपका जो टेस्टिंग आपके पैरामीटर हैं वो आप मॉनिटर नहीं करते। हम कुछ चीजें अवॉइड कर देते हैं, जैसे कि आप फेल हो सकते। Almost 75% of the transformer oil is completely water contaminated by transformer oil carries useful information about the condition of the transformer, like blood in the urine. अब हम बात करें, क्या आप अपने ट्रांसफार्मर की हेल्थ के बारे में जानते हैं? अगर आपको पता होगा कि आपका ऑयल जो है कंटामिनेंट तो नहीं है या फिर उसके अंदर बैड ऑयल तो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आपको आपके ट्रांसफार्मर ऑयल मीन्स आपको आपकी ट्रांसफार्मर की हेल्थ के बारे में पता है। ये आपको ट्रांसफार्मर की कंडीशन के बारे में बताएगा। ये सेम वैसे है जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर आप एक ब्लड को टेस्ट करवाते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि जो ह्यूमन है उसकी हेल्थ कैसी है। सिमिलर एज़ जब आप ऑयल को टेस्टिंग कराएँगे तो आपको जो ट्रांसफार्मर की हेल्थ है उसके बारे में पता चलेगा, और जो आप जो ऑयल यूज़ कर रहे हैं ट्रांसफार्मर में, आपको उसके बारे में भी पता चलेगा। इसलिए आपको ट्रांसफार्मर ऑयल टेस्टिंग करवाना चाहिए। इससे आपको ट्रांसफार्मर की Replace OR repair, loss of revenue, loss of revenue, loss of power supply, penalty, utility, loss of customer, loss of अब हम अगर आपका ट्रांसफार्मर फेल होता है तो इसका आपकी कंपनी या सबस्टेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इसका सीधा-सीधा इम्पैक्ट आपके ऑपरेशन पे पड़ेगा। इससे होगा क्या, आपका जो काम है रेगुलर बेसिस पे जो आप काम कर रहे हैं वो रुक जाएगा। आपको ट्रांसफार्मर फेल होने के बाद या तो रिप्लेस करना पड़ेगा या फिर रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आपने ट्रांसफार्मर को रिपेयर किया तो वो ट्रांसफार्मर की जो बची हुई लाइफ है वो कम हो जाएगी। दूसरा, आपको पूरी सप्लाई नहीं मिलेगी, आपको पेनल्टी लग सकती है। जिससे होगा क्या, आप टाइम पे कस्टमर को ना तो सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं, ना ही आप प्रोडक्ट दे पाएँगे। इससे आपकी कंपनी का जो रेवेन्यू है उसका लॉस हो जाएगा। आपको आ रही है? interfacial tension, viscosity, flash point and core point. Second, chemical parameter, water content, acidity, sludge content. Third, dielectric strength, specific resistance, dielectric dissipation. अब हम ट्रांसफार्मर ऑयल प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। ट्रांसफार्मर ऑयल की मेन 3 प्रॉपर्टी होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी की, जिसके अंदर आपको कलर, अपीयरेंस, डेंसिटी, इंटरफेशियल टेंशन, विस्कोसिटी, फ्लैश पॉइंट और पावर पॉइंट, ये आपको ट्रांसफार्मर ऑयल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताएगा। अब बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी की। केमिकल प्रॉपर्टी आपको वाटर कंटेंट, एसिडिटी और स्लज कंटेंट से पता चलेगी। थर्ड, हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जिसको आप ब्रेकडाउन वोल्टेज भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको आप रेजिस्टिविटी बोलते हैं, और डाइलेक्ट्रिक डिसिपेशन फैक्टर जिसको आप 10 डेल्टा बोलते हैं। ये आपकी 3 प्रॉपर्टी हैं ट्रांसफार्मर ऑयल की, जो आपको ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग के माध्यम से पता चलेगा। Why transformer oil is the life avoiding shutdown by determining the conditions of the problem with the oil transformer based on the quality of the transformer oil. Testing of transformer oil is network. Identify the electrical, physical and chemical characteristics of transformer. Determine whether a particular oil is suitable for future use. Identify the requirement for filtration, boost component life and that oil is. Maximize safety and avoid untimed. अब हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर टेस्टिंग इम्पोर्टेंट है। अगर आपको आपके ट्रांसफार्मर जो है उसकी क्वालिटी में पता है,
तो आपको आपका जो ट्रांसफार्मर है, आपको ये पता चल जाएगा कि आपके ट्रांसफार्मर की लाइफ क्या है, आपके ट्रांसफार्मर की ऑयल क्या है। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है, वो ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर है या फिर वो ट्रांसफार्मर के अंदर है। जैसे कि आपको कुछ चीज़ों का पता चलेगा, जैसे जो ट्रांसफार्मर ऑयल है, उसकी तीनों प्रैक्टिकल प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है या केमिकल प्रॉपर्टी है। इन तीनों प्रॉपर्टी के बारे में आपको पता चलेगा। जो ऑयल आप यूज़ कर रहे हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, क्या वो फ्यूचर के लिए सूटेबल है आपके ट्रांसफार्मर के लिए? आपको टेस्टिंग के माध्यम से इसके बारे में भी पता चलेगा। अगर आपको इसके बारे में पता लग गया कि भई आपका ट्रांसफार्मर ऑयल सही नहीं है, तो क्या उसको आपको फ़िल्ट्रेशन करवाना है या फिर ऑयल को आपको रिप्लेस करवाना है। ऑयल टेस्टिंग से आपको ये भी पता चलेगा जो आपके जले हुए कंपोनेंट हैं, उसकी बार फ़िल्ट्रेशन करवा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपको फ़िल्ट्रेशन करवाना भी है कि नहीं करवाना है, आपको रिप्लेस ही इसका एक सॉल्यूशन है। तो आपका एक्सपेंसेस इससे बार-बार बढ़ रहा है। इससे टेस्टिंग से आपको पता चलेगा कि आपको कट करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैक्सिमम टेस्टिंग करवाएँगे, तो आपका जो अनटाइमली फेलियर हो रहा है ट्रांसफार्मर का, इससे आपको क्या है मैक्सिमम से मैक्सिमम सेफ्टी मिलेगी। Moisture, water, content test, acidity test, dielectric dissipation test, resistivity test, 6, flash point test, 7, core point test, 8, viscosity test, reverse gas analysis test, VG, 11, interfacial tension test, IFT, 12. अब हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर ऑयल में हमें कौन-कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। पहला टेस्ट है ब्रेकडाउन वोल्टेज जिसको हम बीडीबी कहते हैं। सेकंड वाटर कंटेंट, एसिडिटी टेस्ट है, डाइलेक्ट्रिक डिसिपेशन फैक्टर जिसको आप टैन डेल्टा भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको आप रेसिस्टिविटी बोलते हैं, फ्लैश पॉइंट टेस्ट, पुअर पॉइंट टेस्ट, विस्कोसिटी टेस्ट, कलर एंड अपीयरेंस टेस्ट, डिसॉल्व गैस एनालिसिस जिसको आप डीजे टेस्ट भी बोलते हैं, इंटरफेशियल टेंशन, आईएफटी टेस्ट एंड डेंसिटी टेस्ट। जब जब भी आप ट्रांसफार्मर ऑयल टेस्टिंग की बात करते हैं, तो आपको एटलीस्ट ये पैरामीटर आपको कवर करने चाहिए आपकी टेस्टिंग में। Measures dielectric strength, PDB indicates 2. Water content checks moisture in oil. Moisture reduces insulating property. 3. Tan delta indicates dielectric losses. Higher value suggests oil degradation. 4. Resistivity measures insulation. High resistivity means better oil quality. 5. Density. Density affects cooling and insulation. Should be within standard. Visual check for glamour. How to oil अब हम बात करेंगे जो टेस्ट हमें कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज की। ये आपकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है इंसुलेटिंग ऑयल की, उसके बारे में आपको बताएगा। वाटर कंटेंट की बात करें तो वाटर कंटेंट आपको ऑयल के अंदर कितना वाटर प्रेज़ेंट है, ये आपको बताएगा। टैन डेल्टा की बात करें तो ये आपको इंडिकेट करता है कि कितना डाइलेक्ट्रिक लॉसेस हुआ है ऑयल के अंदर। रेसिस्टिविटी की बात करें तो ये मेज़र करता है इंसुलेटिंग ऑयल के रेजिस्टेंस को। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी टेस्ट से आपको ये पता कि आपका कूलिंग में पड़ेगा क्योंकि आपका जो ऑयल है वो थिक ज़्यादा है और वो फ्लो नहीं कर पा रहा है, जिससे आपका कूलिंग पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अपीयरेंस की बात करें तो आपको ये पता चलेगा विजुअली कि ऑयल की क्लैरिटी कितनी है और कलर की बात करें तो आपको ऑयल के कलर के बारे में पता चलेगा। कलर की अलग-अलग स्टेज होती हैं जैसे ब्राउन है, डार्क ब्राउन है, अम्बर है या फिर येलो है। 7. Blood sediment checks for presence in oxidation or contamination. 8. Flash point temperature at which oil vapors ignite. A low flash point is a fire risk. 9. Acidity measures acidic content. High acidity shows oil deterioration. 10. Kinematic viscosity indicates oil's flow property of cooling efficiency. 11. Lowest temperature at which oil सेडिमेंट कंटेंट की स्लज एंड सेडिमेंट से आपको ये पता चलेगा कि ऑयल
इससे क्या हो रहा है। फ्लैश पॉइंट की बात करेंगे, फ्लैश पॉइंट से आपको ये पता चलेगा कि आपका ऑयल किस टेम्परेचर पे आके वेपराइज़ हो रहा है और उसके अंदर इग्नाइट हो रहा है, यानी कि आग नहीं लग रहा है लेकिन लगने के बाद वो बुझ रहा है। इससे आपका जो फायर का रिस्क है, उसके बारे में आपको पता चलेगा। एसिडिटी की बात करेंगे, एसिडिटी टेस्ट से आपको ये पता चलेगा कि ऑयल के अंदर कितने एसिड है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी टेस्ट, इससे आपको पता चलेगा कि ऑयल जो है वो किस प्रेशर से आपका ऑयल सही तरीके से फ्लो नहीं करेगा, तो आपका कूलिंग पे करेगा। क्योंकि जब भी आपका ऑयल हीट होता है, तो वो रेडिएटर के थ्रू कूलिंग होके डाउन में जाता है। लेकिन अगर वो सही से फ्लो नहीं होगा या फिर वो टाइम लगाएगा, तो उसको प्रॉपर कूलिंग नहीं मिलेगी, तो ट्रांसफार्मर की जो कूलिंग है, उस पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। पुअर पॉइंट टेस्ट की बात करें, तो पुअर पॉइंट टेस्ट से आपको पता चलेगा कि ये वो लोएस्ट टेम्परेचर है, जिस पे कोल्ड की वजह से आपका जो है ऑयल फ्रीज हो जाएगा। इसका इम्पैक्ट भी आपका कूलिंग के ऊपर पड़ेगा। अब हम बात करेंगे डिसॉल्व गैस एनालिसिस की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है। इससे आपको क्या पता चलेगा, इससे आपको ट्रांसफार्मर की इंटरनल हेल्थ के बारे में पता। इससे पहले हमने जो 11 पैरामीटर्स की बात करी, वो आपको ऑयल की क्वालिटी के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर हम डीजे की बात करें, तो डीजे आपको इंटरनली फॉल्ट के बारे में बताएगा। अगर ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ अबनॉर्मल हो रहा है या उसके अंदर कुछ फॉल्ट हुआ, तो कुछ गैसें बनेंगी ऑयल के अंदर, जैसे कि हाइड्रोजन गैस है, मीथेन है, इथेन है, एथिलीन गैस है, एसिटिलीन गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। जब भी ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ अमल होगा, स्पार्किंग हो रहा है या थर्मल कनेक्टिविटी हो रही है या कनेक्शन लूज है, तो ये गैसें जो है ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर बनेंगी। अब हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के अंदर जौन-जौन से फॉल्ट होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना फास्टर डिस्चार्ज की। ये बेसिकली तब होता है जब आपका इंसुलेटिंग पेपर जो है जब हीट हो रहा होगा, तब उसके अंदर कुछ गैसों का रेशियो बनेगा, उससे कोरोना फास्टर डिस्चार्ज टेस्ट जो है फॉल्ट बनता है। सेकंड हम बात करेंगे D1 की। इसमें क्या होता है, डिस्चार्ज ऑफ लो एनर्जी। जब भी आपकी वाइंडिंग के अंदर आर्किंग या फिर स्पार्किंग हो रहा है, तो उस फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है डिस्चार्ज होगी, लेकिन होगी वो लो एनर्जी में। इस केस में क्या होता है कि आपकी एसिटिलीन गैस बनती है। तो जब भी वो उसके अंदर कुछ अबनॉर्मल हुआ, मान लो उसके अंदर वाइंडिंग के अंदर स्पार्क हुआ, वो कंटिन्यूअसली नहीं हुआ, अभी स्पार्क हुआ, फिर कुछ टाइम के बाद हुआ, फिर कुछ टाइम के बाद हुआ, तो उससे आपकी क्या है, एसिटिलीन गैस बनेगी। जब अगर आपने उसका सही से रिपेयरिंग नहीं किया है, उसकी मेंटेनेंस नहीं की, उसका टेक केयर नहीं किया, तो वो D1 से बढ़ कर के D2 में चला जाएगा। उस स्टेज पे क्या होगा कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है हाई एनर्जी में डिस्चार्ज होगी। कैसी होगी? आपका पहले वो कुछ टाइम के बाद स्पार्क हो रहा था, लेकिन अब उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। वो अब कंटिन्यूअसली स्पार्क हो रहा है। एक टाइम के बाद स्पार्क हो रहा है, फिर स्पार्क हो रहा है, फिर स्पार्क हो रहा है। यानी कि जो टाइम पीरियड है, वो कम हो गया। तो इससे क्या होगा, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हाई एनर्जी में डिस्चार्ज हो रही है। दूसरी बात करें हम थर्मल फॉल्ट की। थर्मल फॉल्ट के 3 स्टेज हैं। जो थर्मल फॉल्ट है बिलो 300 डिग्री सेल्सियस, 300 से 7 डिग्री। T2 की बात करें और टी T3 की बात करें, तो इसमें जो है टेम्परेचर 700 डिग्री से ज़्यादा होगा। T1, T2 की बात करें, तो T1 में स्टेज 1 पे चला जाएगा। जब भी आपका कोई बैड कनेक्शन होगा, मान लो कि आपका अर्थिंग प्रॉपर नहीं है या फिर आपने मेंटेनेंस करवाया, कोई बोल्ट लूज़ रह गया, उसकी वजह से क्या है, थर्मल कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। तो उस टाइम पे ट्रांसफार्मर के अंदर एक अबनॉर्मैलिटी होगा। ये 300 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर नहीं है कि आपका ट्रांसफार्मर 300 डिग्री पे पहुँच गया। जिस पर्टिकुलर टाइम पे वो फाल्ट हुआ,
अब नॉर्मेलिटी हुआ उस पर्टिकुलर टाइम विद एंड उस टाइम पे ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर कितना था वो इसके बारे में इंडिकेट करेगा। अगर वो T1 में है तो उसमें कम टेम्परेचर था, T2 की बात करें तो 300 से 700 के बीच में था। लेकिन अगर हम T3 की बात करें तो T1, T2 और T3 में आ सकता है। लेकिन थर्मल फॉल्ट जो है T3 इसमें क्या है, ओवरलोड का एक मेन रोल रहता है। जब भी आपने ऑपरेशन में ट्रांसफार्मर ले रखा है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, उसमें आपने ओवरलोड कर दिया, तो उस टाइम पे कुछ गैस बनेंगी, तो जिससे आपका जो है थर्मल फॉल्ट बनेगा। अब हम बात करेंगे डीटी की। ये क्या होता है, ये मिक्सचर ऑफ फॉल्ट होता है। इसके अंदर आपका थर्मल फॉल्ट भी है और इलेक्ट्रिकल फॉल्ट भी है, यानी कि डिस्चार्ज ऑफ लो एनर्जी, हाई एनर्जी या फिर थर्मल फॉल्ट है। इसमें होता क्या है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी भी डिस्चार्ज हो रही है उसके अंदर, वाइंडिंग के अंदर, और जो थर्मल कनेक्टिंग, मान लो आपका कोई बोल्ट लूज है या फिर कोई कनेक्शन है जो प्रॉपर नहीं है, जिससे आपका जो है थर्मल फॉल्ट हो रहा है। लास्ट में हम बात करेंगे स्टे गैसों की। स्टे गैस क्या होता है, मिनरल ऑयल के अंदर जब 120 से 220 टेम्परेचर के अंदर जब ऑयल हीट होता है तो उसके अंदर कुछ गैसें मिक्स होती हैं। कभी मान लो अब नॉर्मल हो गया ट्रांसफार्मर, वो बाद में वो नॉर्मल हो गया, लेकिन जब वो अब नॉर्मल हुआ उस टाइम पे कुछ गैसें बनी, जैसे हाइड्रोजन है या मीथेन है। ये ऐसी गैसें हैं जो बनती हैं वो बाद में मिक्स भी हो जाती हैं। मान लो अब नॉर्मल हुआ तो आपकी जो गैसें हैं वो ऑयल के अंदर मिक्स हो गई, आपने टेस्ट करवाया, कुछ गैसें आई, तो इसलिए वो आपको ऑयल के अंदर मिलेंगी। ये जो स्टे गैस फॉल्ट है, ये नॉन डैमेज फॉल्ट है। How can we determine the basic electrical properties of transformer? Identify the good for further use. Detect whether filtration would replace the oil. Enhance component life and reduce oil cost. Urja allows the maintenance to be scheduled and corrective action to be taken for the अब हम बात करेंगे हम आपकी कैसे हेल्प करेंगे। हम आपको ऑयल की तीनों प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे। जो आप ट्रांसफार्मर में ऑयल यूज कर रहे हैं, क्या वो आपके ट्रांसफार्मर के लिए फ्यूचर के लिए सुटेबल है या नहीं है, ये हम आपको टेस्टिंग के माध्यम से बताएंगे। अगर आपका ट्रांसफार्मर ऑयल आपके लिए सुटेबल नहीं है तो उसको आपको फिल्ट्रेशन करवाना है या फिर रिप्लेस करवाना है। हो सकता है आपका रिजल्ट फेयर में आ जाए, तो कुछ लोग क्या सोचते हैं कि इसको रिप्लेस कर देते हैं। नहीं, कुछ टाइम के बाद आप उसको टेस्टिंग करवाइए, हो सकता है आपका सैंपलिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गया हो, सैंपलिंग सही से नहीं हुई हो, या फिर आपका फिल्ट्रेशन के ट्रीटमेंट से भी वो सही हो सकता है। तो ये चीज़ हम आपको बताएंगे टेस्टिंग के माध्यम से कि इस आप फिल्ट्रेशन करवा लीजिए, तो आपका जो एक्सपेंस है वो कम हो जाएगा। आपकी जो कंपोनेंट है, मान लो उसमें कुछ लाइफ कम हो गई, बहुत एज का ट्रांसफार्मर है, तो आपके जो कंपोनेंट्स हैं उसकी लाइफ के बारे में हम बताएंगे। आप जो बार-बार फिल्ट्रेशन करवा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपको फिल्ट्रेशन करवाना है या फिर ऑयल को रिप्लेस करवाना है, तो आपकी बार-बार जो कॉस्ट लग रही है उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं, रिड्यूस कर देंगे। सेकंड, हम आपको टेस्टिंग के माध्यम से, जैसा हमने बताया जी में, हम आपको पहले ही इन्फॉर्म कर देंगे कि आपको कब मेंटेनेंस शेड्यूल करनी है। हो सकता है आपका गैस स्टे गैस में आ जाए लेकिन आप मेंटेनेंस करवा लें, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। हम आपको ये बताएंगे कब और किस टाइम पे किस चीज़ की मेंटेनेंस करवानी है। आपको जैसे ही आपने सैंपल दिया इमीडिएटली हम आपको बताएंगे कि आपके ट्रांसफार्मर के अंदर क्या प्रॉब्लम है। transformer oil testing service from Urja Technical Services Private Limited. First, large range of samples testing. Second, NABL accreditation ISO IEC 17025:2017. Third, testing of oil as per ISO IEC and NAS standards. Fourth, pan-India quick and easy sample recall. Fifth, digital online test report. Sixth, reduced maintenance. Seventh, latest and advanced soil testing equipment. 8. Better management. 9. No human error. 10. Zero breakdown and no production. अब हम बात करेंगे कि आप ट्रांसफार्मर ऑयल टेस्टिंग ऊर्जा टेक्निकल सर्विस से क्यों करवाएं। हमारे पास जो है लार्ज रेंज ऑफ सैंपल टेस्टिंग कैपेसिटी है। हमारी लैब जो है एनएबीएल एक्रेडिटेड है विद ISO IEC 17025:2017। हम जो टेस्टिंग जो मेथड है, हमारे पास इंडियन स्टैंडर्ड भी हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी हैं और अमेरिकन स्टैंडर्ड भी हैं। हम तीनों स्टैंडर्ड पे आपको टेस्टिंग प्रोवाइड कराएंगे।
हमारे पास अपनी एक सैंपलिंग टीम है, जो जल्दी से जल्दी आपके ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपका जल्दी से जल्दी सैंपल और ईज़िली आपके जो है सैंपल पिकअप करेगी। हमारा ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जिससे हम आपको डिजिटल और ऑनलाइन टेस्ट जो है रिपोर्ट प्रोवाइड कराएँगे। आपकी जो बार-बार आपको मेंटेनेंस करवाना पड़ रहा है, उसको हम कम कर देंगे। हमारे पास लेटेस्ट और एडवांस टेस्टिंग इक्विपमेंट हैं, जो सभी स्टैंडर्ड को फ़ॉलो करते हैं। हमारे पास बेटर मैनेजमेंट है, आपको सफ़र नहीं करना पड़ेगा कि आपने आज मेल किया, मैसेज किया, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं है, आपका शटडाउन हो गया है। आपका जो भी इंक्वायरी रहेगा इमीडिएटली हमारा मैनेजमेंट आपको रिस्पॉन्स करेगा और आपकी जितनी भी इंक्वायरी है उसको फुलफिल करेगा। ह्यूमन एरर की बात करें तो हमारे यहाँ ह्यूमन एरर होने के बहुत कम चांसेस हैं क्योंकि हमारा अपना एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जिसके बिहाफ़ पे हमारा सभी काम ऑनलाइन होता है, तो जिससे आपका जो एरर है नहीं हो सकता। जो अब हम बात करें ब्रेकडाउन की, आपका ब्रेकडाउन नहीं होने देंगे और आपका प्रोडक्शन लॉस भी नहीं होने देंगे हम। Inspection from Volta any real accredited. Testing can only be asked to as a sample testing. Our team of highly trained professionals perform on-site sampling any real accredited service. We strongly do the sampling for transformer. Other sampling methods are also available on app. Like sampling technique are conducted for you. Stainless steel bottle sample, aluminum bottle sample, amber bottle. अब हम बात करेंगे फील्ड पे होने वाली सैंपलिंग के बारे में। इससे पहले हमने जितना भी डिस्कशन किया वो टेस्टिंग के बारे में बात किया। जो सैंपलिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपकी सैंपलिंग सही से नहीं हुई, तो आपका इसका इम्पैक्ट जो है आपकी ट्रांसफार्मर जो रिज़ल्ट है उसके ऊपर पड़ेगा। इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको सैंपलिंग लेना किसमें है और लेना कैसे है। ये चीज़ हम आपको गाइड करेंगे। आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहिए तो हम आपको बाय वीडियो कॉल आपकी हेल्प कर देंगे। फ़ोन कॉल पे हेल्प चाहिए हम आपकी वैसा हेल्प कर देंगे। हमारी वेल ट्रेन्ड टीम है जो सैंपलिंग की ऑल ओवर इंडिया आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। आप सैंपलिंग की बात करें तो आप स्टेनलेस स्टील बॉटल में या फिर एल्यूमीनियम बॉटल में प्रेफ़रेंस दीजिए। अगर आपके पास ये दोनों बॉटल नहीं है तो एट लीस्ट आप अम्बर बॉटल में सैंपलिंग कीजिए। कई बार कस्टमर क्या करता है प्लास्टिक बॉटल में सैंपल जो है कलेक्ट करता है। जैसा कि हम ट्रांसफॉर्मर होता है, उस टेम्परेचर पे जो प्लास्टिक बॉटल है वो स्टेबल नहीं रहती क्योंकि अगर उस टेम्परेचर पे आप ऑयल लोगे तो बॉटल के जो कंटामिनेंट हैं जिससे वो बनी है, उसके जो कंटामिनेंट है वो ऑयल के अंदर मिक्स हो जाएँगे, वो उसके लिए सूटेबल नहीं है। तो आपका जो रिज़ल्ट है उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली रिज़ल्ट पे पड़ेगा। इसलिए आप मेक श्योर कि आप इन बॉटलों का यूज़ कीजिए एज़ पर प्रोसीजर। Transformer oil sample method. First, where EPU. Second, proper sampling equipment, bottle, tube fittings. Third, choose the sample spot on the transformer. Fourth, proper flushing of oil from sample point. Fifth, clean the sample bottles with oil 2 times. Sixth, collect the sample in sample bottle, let the oil overflow. Seventh, remove the filling tube and seal the bottle. Eighth, note down the oil temperature. 9. Make the sample information sheet with complete. अब हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर ऑयल का लेने का कलेक्शन का प्रोसीजर का। सबसे पहले आपके पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होने चाहिए, जैसे सेफ्टी हेलमेट है, सेफ्टी बेल्ट है या फिर सेफ्टी शूज़ है। ये सब आपको वेयर करने हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी ये है ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। दूसरी चीज़ आपके पास सैंपलिंग किट होना चाहिए। सैंपलिंग बॉटल, ट्यूब फिटिंग है या फिर टूल जो सैंपलिंग में लगते हैं। जैसे आप कोई बोल्ट खोलेंगे तो आपके पास टूल होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर पाइप फिटिंग होना चाहिए, जो सैंपलिंग वाल्व पे जो सैंपलिंग किट लगेगी वो प्रॉपर होना चाहिए। इसके बाद आपको एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि आपको सैंपलिंग किस पॉइंट पे करनी है, किस सपोर्ट पे करनी है, लाइक टॉप पे करनी है, बॉटम पे करनी है या फिर ओएलटीसी पे करनी है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर जब आप भी सैंपलिंग के लिए सैंपल वाल्व लगाएँगे किट को, तो फर्स्ट टाइम आप जो वाल्व से थोड़ा-सा ऑयल बाहर निकालेंगे, इससे होगा क्या जो आपका सैंपलिंग जो पॉइंट है, उसके सरफेस पे अगर कुछ भी कंटामिनेंट लगा है, तो वो ऑयल के थ्रू बाहर आ जाएगा। उसके बाद फिर आप 2 टाइम थोड़ा-थोड़ा सा ऑयल लेंगे बॉटल्स के अंदर, फिर उसको क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद फिर आप जो है थर्ड टाइम सैंपल में सैंपल लेंगे, ऑयल लेंगे।
ऑयल आपको तब तक लेना है जब तक वो ऊपर से ओवरफ्लो नहीं हो जाए। मेक श्योर आपका ओवरफ्लो होना चाहिए और इस टाइम पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप बात ना करें, क्योंकि उससे आपका जो है मॉइस्चर भी ऑयल के अंदर जा सकता है। मेक श्योर जब भी आप सैंपल ले रहे हैं कि जो ट्यूब लगाई है आपने सैंपलिंग की, उसके अंदर पूरे एक फ्लो में आना चाहिए ऑयल, उसमें कोई भी एयर गैप ना। सैंपल ओवरफ्लो होने के बाद आप ट्यूब को रिमूव करेंगे और बोतल को सील करेंगे। इसके बाद आपका जो ऑयल टेम्परेचर है, वाइंडिंग टेम्परेचर है या फिर ऑयल टेम्परेचर को नोट डाउन करेंगे। ऑयल नोट डाउन करने के बाद जो सैंपल आपने कलेक्ट किया जिस ट्रांसफार्मर से, उसकी आपको कुछ इंफॉर्मेशन जो है टैग लगाना पड़ेगा, जैसे कि बोतल नंबर है, ट्रांसफार्मर सीरियल नंबर है, ट्रांसफार्मर मेक क्या है, उसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर क्या है और सैंपलिंग पॉइंट क्या है। इसके अलावा हम आपको एक शीट प्रोवाइड कराएंगे, कस्टमर रिक्वायरमेंट फॉर्म, सेम डेटा आप देंगी वो उसमें आपको फिल करने पड़ेंगे, ताकि उसके बिहाफ पे ही हम आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा सैंपल किस पॉइंट से लिया गया है। इसलिए तो जब भी आप सैंपल कलेक्ट करें, इमीडिएटली आप उस पे टैग लगाएं, ताकि एक सैंपल है दूसरे सैंपल के साथ मिक्स ना हो सके। Ultra Technical Services Private Limited, the leading company, India's biggest calibration and testing laboratory. नाउ चैट बॉक्स इज ओपन नाउ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज चैट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, हम आपके सभी डाउट्स हैं उसको अभी क्लियर करेंगे। आपने पूछा कि ऑयल जो है डिफरेंट मेक का मिक्स होना चाहिए। मेक की बात करें तो कंपनी कोई भी हो सकती है, जैसे भी आप एक टैबलेट लेते हैं सिर दर्द की तो मेक उसका कोई भी होगा, लेकिन मेक श्योर अगर आपके ट्रांसफार्मर के अंदर मिनरल ऑयल है तो आप मिनरल ऑयल का ही उसके अंदर मिक्स करें। ये नहीं कि आप ईस्टर ऑयल उसके अंदर डाल रहे हैं, तो इससे क्या है आपका प्रॉब्लम आ सकता है। आपने बोला कि किस टाइम पे रिक्वायर्ड है, एटलीस्ट हम रिक्वायर्ड करते हैं एज पर आईएएस कि आप 1 ईयर के बाद जो है टेस्टिंग करवा लें। अदरवाइज 1 ईयर का मतलब ये नहीं है कि आप 1 ईयर के बाद ही करवाएंगे,
योर ट्रांसफार्मर कंडीशन, हो सकता है आपके ट्रांसफार्मर में अबनॉर्मलिटी आ गई, तो इमीडिएटली आप क्या है टेस्टिंग करवाइए। या फिर आपने मान लो फ़िल्ट्रेशन करवाया है, फ़िल्ट्रेशन करवाने से पहले आप टेस्टिंग करवाएँगे, या फिर फ़िल्ट्रेशन करवा लिया उसके बाद भी आप टेस्टिंग करवाएँगे, ताकि आपको पता चले कि आपने जो फ़िल्ट्रेशन करवाया है, उसका कुछ बेनिफिट हुआ है कि नहीं है। इसके अलावा आप फ्रीक्वेंटली कभी भी जो है टेस्टिंग करवा सकते हैं, आपके ट्रांसफार्मर की कंडीशन के अकॉर्डिंग। आपने रेनी सीजन की बात करी, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन है। तो रेनी सीजन की बात करें तो जब भी आपका मॉइस्चर है एनवायरनमेंट के अंदर, तो आप प्रेफरेंस दीजिए, आप ऑयल सैंपल मत कलेक्ट कीजिए, क्योंकि उसके अंदर क्या है मॉइस्चर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ट्राई कीजिए कि आपका जब समर हो, ड्राई मौसम है, तो तब आप सैंपल कलेक्ट कीजिए।
अभी आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पुट कीजिए, और थैंक यू, आपने कीमती समय हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई भी इंक्वायरी है ट्रांसफार्मर ऑयल से रिलेटेड 24 आप कभी भी कॉल कीजिए, नो इशू। थैंक यू सो मच।